going to find out the time period of spring. We are needing an equation of time period of oscillating spring, and we are also checking whether the motion is simple harmonic or not. So we say that the restoring force is equals to minus kx. Since we know that the force is equals to ma, so आपके पास ma is equals to minus kx. So a is equals to minus k upon m into x हो जाएगा. We can compare this equation with the equation of simple harmonic motion, that is a is equals to minus omega square x. So we can see that the minus omega square is simply over here equals to minus k upon m, which means the angular frequency of oscillating spring, the angular speed of oscillating spring is actually depending upon k, which is a spring constant, and the mass. Now we know that omega is equals to 2 pi upon t. Taking under root on both sides, it will become omega is equals to under root k upon m. Hence, we can put the value of omega is equals to 2 pi upon t. Okay. And it is equals to under root k upon m. If we'll flip the values on the both sides, it will become t upon 2 pi is equals to whole under root m upon k. Okay. We can take this 2 pi over here. Okay. So the final equation we are getting is t is equals to 2 pi whole under root m upon k. So this is the equation of the oscillating spring. We can find out the time period of oscillating spring by using this equation, and we can see that the time period is directly proportional to the mass of the object attached to the spring, which means that if the mass is greater, the oscillating time will be more, and k is inversely proportional to t, which means कि अगर हम k को बढ़ाएंगे, it will use a stiffer spring, or we can say more tough spring, जिसका k constant ज़्यादा होगा. तो it means अगर हम वो बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, मीन्स स्प्रिंग तेजी से ऑसिलेट करेगी. Anyone having any question? Does anyone have any question? सर पिछली वाली स्लाइड जो आपने यूज करवाई थी वो आपका हो गया भैया, वो इरेज हो गई होगी? कौन सी वाली? जो भी पिछली वाली? स्लाइड आप ये वाली? ये वाली? जी बस ये मैं लाना चाहता था कि रिकॉर्डिंग कहाँ है। जी जी कर लो. बिकॉज FR इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है हम, वो यहाँ पे टेंशन का फोर्स है T, और रीस्टोरिंग फोर्स के साथ हम हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. ओके. ठीक है आराम. ओके. हो गया बच्चों? हसन ये कॉपी हो गई वाली साइड? जी सर हो गया। अच्छा जी. फिर सेकंड वाली भी हो गई? जी सर। अच्छा. अच्छा बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू स्प्रिंग सिस्टम. हमारे पास दो स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास किस तरीके से वर्क करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन क्वेश्चन क्लास Q, but I'm not going to discuss that thing. I'm actually solving a question related to that topic. Okay, so let's see a question. ठीक है.
सेक्शन आर वाले हेडिंग लगा दीजिएगा जब मैं आपको बोलूं कि टू स्प्रिंग सिस्टम, मैं बता दूंगा कहाँ हेडिंग लगानी है, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज a is equals to minus omega square x. Identify the symbol in this equation. जी, what is a acceleration, what is omega angular speed या angular frequency, and what is x displacement. Okay, now state the significance of the negative sign. What is the significance of negative sign? Yes, what is the significance of this negative sign? जी, जैनब, हसन, हिरा, क्या सिग्निफिकेंस होती है नेगेटिव साइन की? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके फाइन। अच्छा जी, अच्छा, अब सेक्शन आर वाले बच्चे क्या करें कि ये डायग्राम को ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ, इसमें क्या कह रहा है। A frictionless trolley of mass m is held on a horizontal surface by means of two similar springs, each of spring constant k. The springs are attached to the fixed points as illustrated in figure 2.1. ठीक है, तो आपके पास दो स्प्रिंग्स के साथ एक ट्रॉली को हमने अटैच किया हुआ है। ये दोनों स्प्रिंग्स अभी कुछ एक्सटेंशन रखते हैं, दो फिक्स पॉइंट से अटैच हैं, लेकिन ट्रॉली इस वक्त किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, ठीक है। When the trolley is in equilibrium, the expansion in each spring is E. इसका मतलब ये है, what they are trying to say, कि इस स्प्रिंग में टेंशन है T और इसमें भी टेंशन कितनी है? T। क्योंकि दोनों सिमिलर स्प्रिंग्स हैं तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा और दोनों में इस वक्त एक्सटेंशन भी कितनी है? E। यानी दोनों स्प्रिंग्स में इस वक्त एक्सटेंशन कितनी हुई हुई है? E की एक्सटेंशन हुई है। एग्रीड। हेडिंग R वाले लगाएंगे टू स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है जी। The trolley is then displaced a small distance of x to right along an axis of the spring. Both springs are remain extended. हमने ट्रॉली को थोड़ा सा राइट साइड पे डिस्प्लेस किया है और जब हम उसमें डिस्प्लेस करते हैं तो हमारे पास दोनों स्प्रिंग्स में थोड़ी सी एक्सटेंशन रहती है, लेकिन हमने राइट साइड पे जो डिस्प्लेस किया है तो एक्चुअली में थोड़ी सी मज़ीद डिस्टेंस का एडिशन हुआ है आपके पास x का, यानी ये ट्रॉली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई है? x पे हुई है। जी, हसन अरहम, डायग्राम बना ली इसकी? हसन अरहम, सेक्शन आर वाले समी, डायग्राम बना ली बच्चों ये? अच्छा जी, अच्छा, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड के ऊपर डिस्प्लेस किया है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ कि हमने इसको राइट साइड पे जब डिस्प्लेस किया होगा तो क्या हुआ होगा एक्चुअली में, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये इस स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये ग्रीन लाइन, और हमने जब इसको राइट पे डिस्प्लेस किया होगा तो ये ट्रॉली थोड़ी सी यहाँ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट अपनी जगह वैसे का वैसा ही, और ये फिक्स पॉइंट भी अपनी जगह वैसे का वैसा ही, ठीक है। अच्छा, हुआ ये होगा कि ये स्प्रिंग एक और ये स्प्रिंग दूसरा, और बच्चों ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसको हमने यहाँ से x की डिस्प्लेसमेंट पे राइट साइड पे डिस्प्लेस किया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स कॉल दिस स्प्रिंग 1 एंड दिस इज स्प्रिंग 2। तो बताइए कि पहले दोनों स्प्रिंग्स में कितनी एक्सटेंशन थी? E की। अब जब हम इसको राइट साइड पे x करेंगे मूव, लेकिन अभी भी दोनों स्प्रिंग्स में थोड़ी सी एक्सटेंशन बची है, तो क्या इन दोनों स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू में चेंज आएगा या नहीं आएगा? स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 में
क्या टोटल एक्सटेंशन में कोई चेंज आएगा? जी अरहम, हसन, समी, हिरा, क्या इसके एक्सटेंशन में कोई चेंज आएगा दोनों स्प्रिंग्स की? जी, तो हमारे पास स्प्रिंग 2 में जब एक्सटेंशन होगी उस एक्सटेंशन को हम बोलेंगे, इस वक्त जो एक्सटेंशन स्प्रिंग 2 में होगी वो होगी ई माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स उसको मूव किया है उस साइड पे, टोटल ई थी पहले, अब उसको एक्स इस साइड पे मूव कर दिया तो ई माइनस एक्स। और बाय द वे स्प्रिंग 1 में जो एक्सटेंशन होगी वो कितनी होगी? ई प्लस एक्स हो जाएगी। लेकिन दोनों हुक्स लॉ को अभी भी ओबे कर रहे हैं, तो स्प्रिंग 1 में जो टेंशन होगी उसको हम कह सकते हैं T1, जो कि बराबर होगी के ई प्लस एक्स के, और स्प्रिंग 2 में जो एक्सटेंशन होगी उसको कह सकते हैं T2, जो कि बराबर होगी ई माइनस एक्स के बराबर। इस सवाल में हमें कह रहा है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द रीस्टोरिंग एक्टिंग ऑन द ट्रॉली इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 2kx। यानी आपके पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो रीस्टोरिंग फोर्स का, वो क्या है? 2kx के बराबर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जिसको हम FR से कंसिडर करते हैं अभी तक, वो बराबर होगा किसके? इन दोनों टेंशंस के रिजल्टेंट के। अब मुझे कोई ये बताए कि इसमें से कौन सा एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, या अगर हम इस ट्रॉली पे रखते हुए इस पोजीशन पे ट्रॉली को छोड़ेंगे तो ट्रॉली किस साइड के ऊपर मूव करेगी, लेफ्ट पे या राइट पे? बाय द वे जिस साइड पे वो मूव करेगी उसी साइड के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी वो फोर्स बड़ा होगा। ये बताइए, इस पोजीशन को जब मैं ट्रॉली को ले जाके राइट पे डिस्प्लेस करके इसको रिलीज करूंगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगी? इट विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। यानी इसका मतलब है कि टेंशन 1 बड़ा फोर्स होगा और टेंशन 2 छोटा होगा, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट या रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स के साथ कैसा साइन हमेशा लगता है? कैसा साइन लगाया जाता है? माइनस का साइन लगाया जाता है। ओके, इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, देन आई विल मूव फर्दर। कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। जैनब, तस्मिया, फातिमा, अबान, जोहेब, आप लोगों ने कल ये पढ़ा हुआ है क्या? आप लोगों ने ये डेरिवेशन कर ली दोबारा से? कि आपके पास दोनों स्प्रिंग्स की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो 2kx के बराबर है। ओके, गुड। कॉपी हो गया भाई? हसन, मरहम, कॉपी हो गया? अच्छा अच्छा, ये मैंने अब इक्वेशन बनाई है और मैं यहाँ से अब इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी? T1 माइनस T2 के। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको साइड पे करता हूँ, या मैं चलो इस पे ओपन इसमें करता हूँ। ठीक है, T1 किसके बराबर है? के ई प्लस एक्स के, और T2 किसके बराबर है? के ई माइनस एक्स के। और हमने बोला है कि रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है T1 माइनस T2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस एफ आर, बल्कि ये माइनस साइन अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो दिस विल बिकम माइनस T1 माइनस T2, और जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, क्योंकि ये T2 माइनस में प्लस हो जाएगा और T1 जो नेगेटिव में पॉजिटिव में है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ आर इज इक्वल्स टू T2 बराबर है
k e minus x, दिस इज t2, और माइनस t1 किसके बराबर है, k e प्लस x। ठीक है जी, ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें, सो दिस विल बिकम के ई माइनस के एक्स, और ये अब खुलेगी तो ये होगा माइनस के ई माइनस के एक्स। के ई प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2kx। ठीक है, और यही हमें उसने इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बोला था, लेकिन हमारी इक्वेशन में माइनस साइन आ रहा है, जबकि उसने हमें सवाल में क्या बोला था कि प्रूफ करो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 2kx। तो हमारी में माइनस साइन क्यों आ रहा है जी? Zainab, why we are getting minus sign over here? अपोजिट डायरेक्शन है, शाबाश तस्मिया, बिल्कुल सही। और वहां पे फिर क्यों माइनस नहीं आ रहा तस्मिया? अपोजिट डायरेक्शन है ज़ैनब, बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे माइनस साइन क्यों नहीं आ रहा? उसने सवाल में क्यों नहीं दिया माइनस साइन है बच्चों? Why it is not giving negative sign in the question? Why it is simply 2kx? जी, तुम लोग कॉपी कर लो, आराम वगैरह ये डेरिवेशन तो बता देना। And can anyone tell me why they haven't gave minus sign in this equation, but we are getting minus sign? What is the reason? Restoring force पूछी है अबान, चलें restoring force पूछी है, more specific answer बेटा, that it will be positive. No, जी हो गया भाई सेक्शन आर कॉपी। तो बाय द वे ये माइनस साइन यहाँ पे बच्चों इसलिए हटा है, इसलिए हटा है, ये क्या बोला हुआ इसने, इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं लगती, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक वैल्यू होती है, और माइनस साइन एक्चुअली में यहाँ किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड माना गया था, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन उन्होंने नहीं लगाई। ओके, कॉपी हो गया यहाँ तक सबका? शैल वी मूव ऑन? ओके, नाउ दे आर सेइंग next part, the trolley is then released, show that the acceleration of the trolley is given by a is equals to minus 2kx upon m। आपको acceleration of trolley को show करना है कि 2kx upon m के बराबर है। We have just made an equation that is fr is equals to minus 2kx। अब देखिए हम माइनस साइन यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने माइनस साइन लगाया है। इन्होंने यहाँ मैग्नीट्यूड शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विद द प्रॉपर डायरेक्शन, दोनों चीजें मार्क की। We know that F is equals to ma is equals to minus 2kx। ये इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा minus 2k अपॉन m इंटू एक्स, और ये एक्सप्रेशन इन्होंने हमसे ड्राइव करवाई थी। ठीक है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स को आप हमेशा किससे खोलोगे, F is equals to ma से, और फिर उसमें जो भी टर्म m की होगी वो उधर ले जाओगे या कैंसिल कर लोगे, और उसके बाद एक्सेलरेशन को हमेशा सब्जेक्ट बनाओगे, और दूसरी साइड पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ओके बच्चों, एनी क्वेश्चन इन दैट? ओके,
The next part of the question is, the mass of the trolley is 900 grams. The spring constant is 120 Newton meters. By comparing your answer in A1 and the equation in E2, determine the frequency of the trolley, oscillating trolley. तो आपको oscillating trolley की frequency को find out करना है. We know that we found that A is equals to minus 2k upon m into x, and we know that the equation of simple harmonic motion is minus omega square A is equals to minus omega square x. So we can simply compare omega square as 2kx और minus दोनों के साथ लगे हुए तो minus minus cancel हो जाएंगे. Now they have asked for the frequency. Now we know the formula of omega, which is 2 pi f. So what we will do, we will substitute the value of 2 pi f over there and solve for the frequency. Because we are given mass, we require mass. ठीक है, हमें mass की ज़रूरत है, and we need a spring constant. ठीक है जी, and we just need a frequency. तो can you do it भाई? हो जाएगा ये? Please solve that. Let me complete this derivation for you. जी, तो ये इक्वेशन में हमने पहले क्या किया, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2k अपॉन m, और अब हमने ओमेगा की क्या जगह लगाया, 2 पाई f इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2k अपॉन m, यानी f किसके बराबर होगा, 1/2 पाई अंडर रूट 2k. इस इक्वेशन में सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. k की वैल्यू 120 है, mass is 900 grams, and we have to convert into kilograms, which is 0.9 kilograms, and you need to find out the value of frequency. ठीक है, frequency की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. भाई जैनब, तस्मिया, अबान, क्या वैल्यू आ रही है बच्चों फ्रीक्वेंसी की? जीरो 0.082. अच्छा जैनब, मुझे गलत लग रही है ये वैल्यू, दोबारा रीचेक करो. F is equals to 1/2 pi whole root 120 multiplied by 2, क्योंकि 2k है, डिवाइडेड बाय 900 इंटू 10 to the power -3, क्योंकि किलोग्राम में चाहिए. Can anyone confirm me the answer? क्या आंसर आ रहा है जैनब? चेक किया तुमने बेटा दोबारा? कैलकुलेटर और किसी के पास नहीं है भाई? हारिस सर 2 मिनट दे, बस
0.026. तो जैनब मैं आंसर ही चेक कर लेता हूँ एक मिनट, मेरे पास भी इसमें कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसका आंसर ही देख लेता हूँ. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जैनब आंसर है 2.6. ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मास को तो कन्वर्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो? हाँ 2.6 आ रहा, सही है. जैनब आई गेस तुमने मास को कन्वर्ट नहीं किया. अच्छा बेटा, ये हमारे पास 2.6 की फ्रीक्वेंसी आ रही है. F is equals to 2.6 hertz. Okay, this is the correct answer. इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? The last part of the question is suggest why the trolley in B provides a simple model of the motion of an atom in a crystal. तो आपके पास ये जो ट्रॉली है ये किस तरीके से एक मॉडल प्रोवाइड कर रही है ऑफ एन एटम इन ए क्रिस्टल. क्रिस्टल के मॉडल का एटम के मॉडल को कैसे प्रोवाइड कर रही है. आई थिंक ये मैंने डिटेल में सेक्शन क्यू वालों को एक्सप्लेन किया था. एक्चुअली में मैंने ये टॉपिक ही स्टार्ट इस चीज़ से स्टार्ट किया था कि ये किस तरीके से जो है यहाँ टेंशन फोर्स एज ए मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसके ऊपर बेस कर रही है, और वो जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, कैसी होती है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसको. तो हु कैन गिव मी द करेक्ट आंसर? जी हारिस, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ कैन यू एक्सप्लेन? तस्मिया, जैनब? एक्चुअली में हम ये कि बोलेंगे द टेंशन फोर्स ओवर हेयर इज एक्टिंग एज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, which is making them vibrate about a fixed point, and the force of intermolecular force is either attractive or repulsive as well. Attractive भी हो सकता है और repulsive force भी हो सकता है. It can be any force. Okay, so this is how you will do this. And any questions anyone to push लीजिए, otherwise this is it for today because many students are not present today. Most of the students are gone for the paper of October number AS. तो मेरे ख्याल है आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ कम है हमारे पास क्लास में. वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 46 students and I can see only 16 students in the online class now. Okay, any questions anyone? Okay, let's stop over here. Take care. Allah Hafiz.